So right now, open your books, open your notepads, and we'll just run through certain aspects of sin. We're just going through an examination of conscience. So we just run through few things. And if you ever encountered that in your life, or if you have ever come across that in your life, oh sorry, you told me yesterday not to move, इसलिए बेचारा यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, I'll try moving more slowly, ठीक है, if I'm moving slowly, blame him, ठीक है. So whatever we are going to speak right now, whatever we are going to tell, if that relates to you, then write it down. And do not peep into your paper and your neighbor's paper. Peeping in your neighbor's paper is also a sin. ठीक है, so ना दूसरों को देखना, ना दूसरों को दिखाना, ठीक है. Every pen, pencil, book, whatever you have, keep it out right now. Everyone's ready? ठीक है. See, there are 10 commandments, so the 10 commandments is divided into different aspects. ठीक है. So the first thing you know, those who love me will obey my commandments. John chapter 14 verse 21. So there are different things. So we are going to just run through everything. We cannot say because you all are not coming into that category. Okay. The first commandment, I am the Lord your God, and you shall have no other strange gods before me. You need to understand, have I worn or still wearing anything like sacred threads, charms, amulets around my leg, my hand? It's a sin. बाइबल कहता है कि पहला I am your Lord, your God, you shall have no other gods before me. क्या मैंने कभी कुछ चीज पहना है या पहन रहा हो, कोई भी धागा या कोई भी चीज मेरे शरीर में, वो एक पाप होता है. Have I been taking advice from sorcerers, witchcraft, jinns or black magic? Like we like to read horoscopes, astrology. That also is a sin. So if you ever come in that category, please write it down. Have I hid or buried anything related to anything that is not of my faith in my house, or have kept it in my place? That's a sin. Have I visited any place, or have I offered anything in different temples, mosque or anything? That's a sin. Offering anything to a different religion, that's a sin. Have I bowed before any other images except the image of God? Have I given too much importance? See, this is very important. Have I given too much importance or feared the saints more than God? At times when we have, like I see people, when they have anything related to saints, the church is packed. But when there is anything related to adoration, the church is empty. That candle fell down. So have I given or feared the saints, or given the saints more important than God? Have I spoken or thought disrespectfully about them? That's a sin. Have I tried to please people more than God? It's a sin. Do you want me to speak in Hindi also, or English चल जाएगा? हाँ, हिंदी बोल देते, ठीक है. क्या मैंने कभी किसी, ठीक है, मेरे को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है. क्या मैंने अपने शरीर में कोई धागा या किसी चीज प्रकार को पहना हुआ है तो वो एक पाप होता है. क्या मैं किसी चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं, जैसा सॉसरी या एस्ट्रोलॉजी जो पेपरों में आता है, क्या मैं पढ़ता हूं कि आज राशि जिसको बोलते हैं, क्या मैं वो राशि के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं मेरे प्रभु से ज्यादा, तो वो भी एक पाप होता है. क्या मैंने दूसरे धर्म के किसी भी चीज में जाकर अपना भेंट चढ़ाया है या माथा टेका है, वो भी एक पाप होता है. क्या मैं संत और चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं, प्रभु के ऊपर नहीं, वो भी एक पाप होता है. क्या मैं परमेश्वर के जो परम प्रसाद होता है या सैक्रामेंट्स ऑफ द चर्च होता है, उसके ओर डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता या उस चीजों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो भी एक पाप होता है. डिसरिस्पेक्टिंग द सैक्रामेंट्स ऑफ द चर्च इज अ सिन. हैव आई गिवन, लाइक कोई रहता है कि 7 नंबर मेरा लकी है, लाल कपड़ा मेरा लकी है,
like I have one of my friend, a Nepali friend of mine, so उसकी माँ उसको 2-3 कलर का कपड़ा पहनने देती भी नहीं. And whenever I open his cupboard, I can only see particular clothes. You don't wear this, ये पैटर्न वाला नहीं पहनो, वो पैटर्न वाला नहीं पहनो. तो one day when I went to Kharagpur and I forgot my bag at home because after my meeting I left, so I couldn't take my clothes back. तो उसके घर में गया, कपड़ा उसको कबर्ड खोला, मैं देख रहा भाई मेरा साइज का कपड़ा है लेकिन ऑल प्लेन. मैं बोला कुछ तो अच्छा वाला दे. बोलता नहीं मम्मी अलाउ नहीं करते. क्यों नहीं? वास्तु के हिसाब से नहीं. बोला है. मैं बोला क्यों? नहीं अशुभ माना जाता है. मैं बोला भाई अगर तू वास्तु शास्त्र करेगा तो हो गया तेरा. Because you are believing more on clothes. Will this color protect you? Will that some of us we have lucky numbers? Yes or no? ये मेरा lucky है तो ये date मेरा lucky है, ये चीज मेरा lucky है. There is nothing luck. There is only God. The holy day, was I diligent in setting aside time for godly things on that day? क्या मैंने जानबूझकर, मैं सुबह उठता हूँ मिस्सा जाने के लिए, लेकिन जानबूझकर बोलता हूँ आज तो छुट्टी है, आज नहीं जाऊंगा मिस्सा. जा सकता हूँ लेकिन जाता नहीं. क्या मैं अपने काम को या मेरे ट्यूशन्स को, मेरे चीज़ों को संडे के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है परमेश्वर के लिए? परमेश्वर को कम इंपॉर्टेंट दिया? और एनीथिंग दैट स्टॉप्ड मी फ्रॉम अटेंडिंग द होली यूकरिस्ट इज अ सिन. Did I receive Eucharist in an unworthy manner? क्या मैंने परम प्रसाद एक अनवर्दी मैनर में लिया है, बिना पाप स्वीकार करते हुए? कभी कभी हमारे पास होता है, do I acknowledge that my wealth, my talents, my habits, my health is a gift from God, or do I consider them something I earned myself? कभी कभी हमें लगता है कि हम जो चीज़ हासिल किए हैं, जो चीज़ मुझे मिला है वो मेरी मेहनत से मिला है. तुम्हारी मेहनत से तुम अपना एक बाल भी हिला नहीं सकते, अपनी मेहनत से एक सांस भी नहीं ले सकते. सब चीज़ परमेश्वर का दिया हुआ है. कभी कभी हमारे अंदर आता है कि मेरे मेहनत से ये हुआ है, मेरे मेहनत से ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है, मेरे मेहनत से इतना अच्छा चीज़ हो रहा है, मेरे मेहनत से ये हो रहा है. कुछ नहीं, तुम्हारा मेहनत कहीं भी नहीं है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है. Have I ever taken glory of God? Have I ever acknowledged God? If not, that's a sin. Have I abstained from meats on Friday? ठीक है, द कैथलिक चर्च टीचर्स दैट फ्राइडे को मीट खाना नहीं चाहिए. जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ा तब मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि परमेश्वर तू फ्राइडे के दिन मीट नहीं खाना चाहिए. अभी तो एक नया नया रूल निकाल दे रहा है. लेकिन मीट से ज़्यादा मेरा परमेश्वर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसा कल दोपहर में खाना ख़त्म हो गया था तो इन लोग ने पैकेट लाया था, ठीक है, चाप बिरयानी का पैकेट. तो मैं बहुत खुश हो गया था कि बिरयानी मिल रहा है, लेकिन जब खोल के देखा उसमें से खाली एक आलू गिरा, मीट तो था ही नहीं. तो इन लोग ने कल बहुत दुख पहुंचाया मेरे को, ठीक है. लेकिन मोर देन दैट मीट, क्राइस्ट इज इंपॉर्टेंट. सो कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि फ्राइडे है तो अरे कौन बोलता है. अभी सबसे बड़ा चीज देखना, 40 days ऑफ लेंट वी ट्राई एवरीथिंग टू प्लीज गॉड, है कि नहीं? 40 दिन रेंट में मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ कि 40 दिन दारू नहीं पिएगा, 40 दिन शराब नहीं पिएगा, 40 दिन मीट मच्छी नहीं खाएगा. इट्स नॉट जस्ट फॉर 40 days, इट्स फॉर लाइफ टाइम दैट आई नीड टू डू थिंग्स. सो हैव आई, so Catholic Church teaches that it is abstinent from meats on Friday. So अगर नहीं किए हो तो वो भी एक लिख देना कन्फेशन में. Have I obstructed the preaching of God in any manner? क्या प्रचार चलने के टाइम मैंने डिस्टर्ब किया है, या प्रचार चलने के टाइम मेरे कारण कोई लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो भी एक पाप होता है. कभी कभी क्या होता है मिस्सा के द्वारा, ड्यूरिंग द होली यूकरिस्ट व्हेन वी गो फॉर आवर ओन चर्चेस, हम लोग अपने अपने चर्च में जाते हैं, तो संडे को व्हेन वी मीट आवर फ्रेंड्स इन द चर्च, we at times during the gospel or during the homily, at times we tend to remove our phones, and what we are seeing we tell our friend also about it. So if you have ever done that, that's a sin. Have I behaved in a manner that defiled the holiness of the church or the church premises? See, when God encountered Moses, he said, Moses, remove that shoes because the ground that you're standing on is holy.
वो तो एक बर्निंग बुश था, यहाँ पर वो खुद स्वयं है. तो हैव आई एवर, नॉट इवन हियर इन योर ओन चर्चेस, हैव आई एवर misbehaved or dressed improper, or if I have ever created a nuisance around my church campus? अगर मैंने अपने चर्च में या चर्च के आसपास भी, चर्च के कैंपस में तमाशा किया है या कुछ चीजें किए जो नहीं करना चाहिए, वो भी एक पाप है. See, that's why I said, no, the conscience of yours is clear. If they are giving you, take it as a sweet, is as a sweet for you. But if your thinking is as offering, given to that, given to this, so if your conscience is pricking you, throw it. If it's clear for you, take it as a sweet. Everything depends on your mind. If you know Christ, you know how to tackle these things. ठीक है? Have I turned away from God after receiving blessing and experiencing His goodness? कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद जो चीज़ मिलता है, मिलने के बाद उसको भूल जाते हैं, और फिर जब तकलीफ आएगा फिर उसके पास हम दौड़ते हुए आते. सो अगर कभी बीच में ये सब किए वो हरकतें, तो वो भी एक पाप है. राइट इट डाउन. Have I provoked God? Have I ever tested God? Have I rejected God's plan for salvation? Have I overlooked or neglected the works of God? परमेश्वर ने हम सब जन को एक कार्य दिया है. Everyone has a purpose in the kingdom of God. We know our calling, but we are too lazy to do our calling. We know our calling, but we do not do our calling. मैं अपनी चीज़ों को नहीं करता, जो चीज़ करना है वो भी एक पाप है. चौथा, अपने माता पिता का आदर करो. ऑनर योर फादर एंड मदर. हैव आई डिसरिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स? क्या मैंने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है? क्या मैंने उन्हें वो प्रेम दिया है जो प्रेम के वो योग्य है? हैव आई हर्ट देम और वुंड देम बाय माय एक्शंस और स्पीच? क्या मैंने अपने शब्दों के द्वारा, अपने कारण, अपने चीज़ों के द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया है? अगर पहुंचाया है तो वो भी एक पाप है. क्या मैं अपने माता पिता का ध्यान रखता हूं जब वो बीमार रहते हैं? डू आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स व्हेन दे आर सिक? द फिफ्थ कमांडमेंट, यू शैल नॉट किल. हैव आई हेल्ड हेट्रेड, ग्रज और एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन? क्या मैं दूसरों के प्रति नफरत, हिंसा अपने हृदय में रखता हूं तो वो भी एक पाप होता है. क्या मैंने दूसरों का निंदा किया या दूसरों के बारे में कहा है? चुगली. हमारे अंदर एक बहुत सुंदर सा चीज होता है, वो है चुगली. हमें मजा आता है दूसरों के चीजों को और दूसरों को बताना. तो कहीं पर भी हम कुछ सुनते हैं तो फटाक से जाकर बोल देते, तू जानता है कि फलाना फलाना, ये तुम जानते हो कि ये चुगली. सिराक कहता है, जब बाइबल में पढ़ोगे, बाइबल में किताब है, सिराक कहता है कि इफ यू हैव एवर हर्ड अ गॉसिप, डोंट शेयर इट. कोई भी अगर तुम्हें कोई चीज रखने बोलता है, कोई चीज तुम्हें सीक्रेट बोलता है, वो सीक्रेट को तुम दूसरों को बताओगे तो वो एक पाप है. सिराक कितनी ब्यूटीफुली से कहता है, इफ यू हैव एवर हर्ड अ गॉसिप और यू हैव हर्ड अ सीक्रेट, डू नॉट टेल इट टू एनीवन, यू विल नॉट बर्स्ट. मतलब तुम फट नहीं जाओगे. कुछ चीज सुनोगे तो फट नहीं जाओगे. इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरों को बताना. हैव आई committed abortion? Have I considered abortion at any point or have encouraged anyone for abortion? कभी कभी होता है कि दूसरों को abortion के बारे में encourage कर देते, तो have I ever committed that? That's a sin. Have I attempted suicide? क्या मैंने अपने हत्या लेने की कोशिश की है? क्या मैंने किसी को बताया है या सपोर्टेड किया है, किसी को मैंने कुछ सपोर्ट किया है इस मैटर में, तो वो भी एक पाप है. क्या मैं लोगों के बीच में निंदा करता हूं? डू आई बायस बिटवीन पीपल? डू आई जज पीपल? See, one thing you need to understand, this man never judges you, so who are you to judge others? Jesus never judges you. Jesus never manipulates, or Jesus never distinguishes between people. Who are you to distinguish among them? Who are you to create divisions among them? Who are you to bias and judge people?
अगर परमेश्वर तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम कौन होते हो दूसरों के ऊपर दोष लगाना, तिरस्कार करना और उनसे नफरत करना? Am I prone to jealousy? Am I not in talking terms with someone or do I avoid people? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग मुझे पसंद नहीं हैं मैं उनकी ओर देखेंगा भी नहीं। चर्च में जब तुम जाओगे, सबसे बड़ा मजा चर्च के टाइम पीस के टाइम आता है। तो अगर पीस के टाइम जिससे मैं नफरत करता हूं अगर मेरे बगल में ही बैठा हुआ है तो मैं पीस यहां दूंगा, पीस यहां दूंगा, पीस पीछे दूंगा, लेकिन उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। हैव आई डिस्ट्रॉयड पब्लिक प्रॉपर्टी? या कोई भी चीज मेरा नहीं है मैं उसको तोड़ता हूं या उस चीज का गलत इस्तेमाल करता हूं, वो एक पाप है। क्या मैं दूसरों को पाप में गिराया है? क्या मैं दूसरों को गलत गलत चीजें सिखाया है? वो भी पाप है। द सिक्स्थ कमांडमेंट, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। व्यभिचार नहीं करोगे। क्या मैंने ये जो शरीर परमेश्वर ने दिया है, 1 कोरिन्थियन अध्याय 6 पद संख्या 19 कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो क्या मैंने इस मंदिर का गलत इस्तेमाल किया है? क्या इस मंदिर से मैं गलत चीजें करवाता हूं? वो भी एक पाप है। Have I committed adultery before? और सेक्स बिफोर मैरिज, वो भी एक पाप होता है। व्यभिचार शादी से पहले क्या मैंने किया है, वो भी एक पाप होता है। कोई भी चीज जो इस शरीर का मैं करता हूं गलत इस्तेमाल, वो एक पाप कहलाया जाता है। द सेवेंथ कमांडमेंट, यू शैल नॉट स्टील। क्या मैं किसी को या किसी का चीज देखता हूं कहीं रखा हुआ और मैं जानता हूं कोई देख रहा नहीं है तो चुपचाप उठाकर रख लेता हूं? क्या मैंने वो किया है? तो वो एक पाप होता है। या मुझे किसी का चीज पसंद है तो मैं मौका देखता हूं उसके बैग से वो निकालने के लिए या उसके लॉकर से वो निकालने के लिए, तो वो भी ये पाप होता है। क्या मैं पैसा कमाता हूं गलत तरीके से? वो भी ये पाप होता है। The eighth commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. You did not lie to us but to God. क्या मैं झूठ बोलता हूं? देखो एक चीज जान लेना, सबसे आसान पाप क्या है जो शैतान हमें गिराता है? तुमने आखिरी बार कौन से साल में झूठ बोला था? सुबह ही बोला रहेगा। See, we take it so leniently, हम लोग इतनी आसान से हमें फंसाया जाता है शैतान के द्वारा कि झूठ बोलो चल जाता है। लेकिन छोटे से छोटा पाप भी, जैसे मैं बार बार कहता, छोटे से छोटा पाप भी पाप होता है। आवर बॉडी, द डेविल इतनी आसानी से, इतने प्यार से हमें समझा देता है कि झूठ बोलना तो चल जाएगा, झूठ बोलने में क्या होता है, और वो आदत हमें डाल देता है। झूठ से बड़ा पाप, एक पाप से एक पाप जुड़ता है, एक पाप से एक पाप जुड़ता है। तो क्या कभी तुमने झूठ बोला है? तो उसको लिख लो अपने किताब में, ठीक है? द नाइन्थ कमांडमेंट, You shall not covet your neighbor's wife. Have I looked at a woman or a man with an unholy eyes? क्या मैं किसी स्त्री या पुरुष की ओर देखता हूं और अपने मन में गलत चित्र बनाता हूं? वो भी एक पाप है। हम सब कहीं ना कहीं किसी चीज को देखते हैं और लस्टफुली उसका इमेजिन करते, वो एक पाप होता है। Have I tainted the holiness of my body? क्या ये शरीर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये शरीर को मैंने पोर्नोग्राफी और अलग अलग चीजों से खराब किया है या पाप में गिरने का आदत डाला हुआ है? तो वो भी एक पाप है, उसको भी लिख देना। क्या मैं दूसरों को पाप में गिराता हूं मेरे बोली से, मेरे करने से, मेरे छूने से, मेरे बिहेवियर से? वो भी एक पाप होता है।
क्या मेरे कपड़ों से मैं लोगों को पाप में गिराता हूँ? लड़का लोग तो छोड़ दो, लड़की लोग, if I am I dressing in a proper sense when I come for the Holy Eucharist or when I come to meet people in a gathering? Do I dress properly? Is my dress leading someone away from Christ through his eyes? It's a sin. It's not the mentality of the one seeing it, it's the one you are wearing it. 10वां commandment, you shall not covet your neighbor's good. Do I lie? Have I lied about my neighbors? क्या मैं अपने पड़ोसी की ओर झूठ बोला है? क्या मैंने अपने पड़ोसी को निंदा किया है? क्या मैंने अपने किसी पड़ोसी का या अपने मित्र का सीक्रेसी या जो सीक्रेट है वो किसी और को बताया है? वो सब पाप होता है। क्या मैंने लोगों का प्रॉमिस या मैंने चीजें जो कहना था वो नहीं कहा है? And there are a few more things which will just, have I disobeyed my elders and superiors? क्या जो मेरे ऊपर अधिकार दिया गया है उन लोगों का मैंने तिरस्कार किया है या मैंने उन्हें डिसोबे किया है? वो भी एक पाप है। क्या मैंने अपना कार्य, have I fulfilled my duties towards the dead? जो मेरे लोग मरे हुए, क्या उनके लिए मैंने प्रार्थना मिस्सा दिया है? क्या मैंने अपने मुंह के द्वारा लोगों को चोट पहुंचाया है, मेरे शब्दों के द्वारा? कभी कभी हम मजाक में जानते नहीं है लेकिन हमारा शब्द हमारे भाई और बहन को चोट पहुंचाता है। तो क्या मेरा ज्यादा मजाक बनाना भी एक पाप होता है? मेरे मजाक के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचा। देखो तुम, यू डू नॉट नो व्हाट द अदर इज फेसिंग, सो डोंट मेक जोक्स ऑन अदर अनलेस यू डोंट नो देयर लाइफ स्टोरी। क्या मैं दूसरों को मजाक बना देता हूं, चीजें उनके बारे में कहता हूं? वो भी एक पाप होता है। See, there are a few cardinal sins that we'll just go through: pride, envy, gluttony, wrath, lust. अच्छा, प्राइड, एनवी, रात, ग्लटनी, लस्ट, स्लॉथ, ग्रीड, आलसीपना, व्यभिचार, पेटूपना, आलसीपना, लालच, क्या ये सब हमारे अंदर है तो वो एक पाप होता है। ठीक है, we'll just cover up. There are so many things, we won't cover up everything else. Just pray, my dear children. What you have written, just pray about it. जो भी तुमने पाप लिखा हुआ है, लंच के बाद जब पाप स्वीकार शुरुआत होगा, खाना अगर तुम जल्दी खा लेते हो, आफ्टर योर लंच यू कैन कम, ब्लेस्ड सैक्रेमेंट विल बी एक्सपोज्ड, यू कैन कम, स्पेंड सम टाइम ओवर हियर एंड मेडिटेट अपॉन योर सिंस। देखो, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर हैबिचुअल सिंस, अगर तुम्हें तुम्हारा वो जो डेली वाला पाप से निकलना है और जो पाप तुम लोग निकले हो उससे निकलना है, तो सबसे पहला चीज तैयार होना सीखो। दिस बाइबल कहता है, इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट विल लीड यू टू रिपेंटेंस। सो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि वो पश्चातापी हृदय तुम्हें दे कि तुम हर पाप स्वीकार, जो भी पाप बोलोगे वो पूरे दिल से बोल सकोगे। हालेलुया। और कोई सवाल है? अलीशा, लंच इज रेडी? ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? मैंने जो कहा पाप के बारे में वो उसमें कुछ समझ में नहीं आया? सब समझ में आया? ठीक है। अगर लंच के टाइम या लंच के बाद भी अगर कुछ डाउट रहेगा, हम लोग तो यहां रहेंगे, आकर पूछ सकते हो। पाप स्वीकार से पहले कुछ भी पूछना है पाप के बारे में या चीजें समझ में नहीं आती, पूछ लेना। हाँ, why you are not choosing? हाँ, नहीं, इट्स अ चॉइस। आज करो, कल करो, परसों करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैं हर वीक कन्फेशन के लिए जाता है, मेरा हर वीक कन्फेशन होता है। इसका ये मतलब नहीं मैं पाप करता हूँ, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी इरिटेट, जो इस लाइन में हम लोग कभी कभी गुस्सा आना होता ही है, बच्चे लोग नहीं सुनता तो गुस्सा आ जाता है। सो एट टाइम्स आई फोन द प्रीस्ट एंड से, फादर आई एम कमिंग, लाइक लास्ट वीक हुआ था। सो लास्ट वीक आई टोल्ड वन ऑफ माई पिकनिक गार्डन फादर्स दैट आई विल बी कमिंग फॉर कन्फेशन। तो फादर बोला काइल एनी टाइम, एंड देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में जा नहीं पाया। तो वो फादर दूसरे को पूछता, काइल किधर है? मेरे को पाप स्वीकार उसका सुनना है। तो सब लोग मेरे को आके पूछते, कितना पापी है रे, फादर तेरे को ढूंढ रहा पाप के लिए।
फिर जब मैं पाप स्वीकार को थर्सडे को गया तो फादर मेरे से ज्यादा खुश फादर है. So at times we tell father like we'll come on Monday but we cannot come. So that's, see, because we are busy or we are caught up with some other work, so it's okay, it's not a sin. As long as you go for confession. If you can't go on Monday, go on Tuesday. So if you choose a particular date and you cannot go, it's okay, there's no harm in that. But next day you are going for it, that is what is more important. ठीक है? Any more questions? ठीक है, let's all stand. मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मारिया विजन इंडिया परिवार का हिस्सा बनिए. रोजाना आत्मिक सामग्री के लिए हमारे YouTube और Instagram को फॉलो करें, जहां पर आपको मिलेगा लाइव मास, लाइव आराधना और हमारा चेन ऑफ लव मध्यस्थ प्रार्थना कार्यक्रम, जो हर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे प्रसारित होता है. हमारे सभी लाइव कार्यक्रम हैथवे चैनल नंबर 23 और देन चैनल नंबर 131 पर भी देखे जा सकते हैं. विश्वास में बढ़ें, आशीर्वादित रहें और याद रखें, मां मरियम हमेशा आपके साथ हैं.